انہوں نے کربلا میں بھی سجدہ نہ چھوڑا۔ اور اے مسلمانوں، تم نرم نرم گدوں پر نمازیں چھوڑ رہے ہو، تم کاروبار کی محبت میں نمازیں چھوڑ رہے ہو۔ اور خواتین اسلام سے بھی کہتا ہوں، اللہ اکبر، گھر کا کام اتنا قیمتی ہے ان کے نزدیک، برتن دھلنا، جھاڑو لگانا، کپڑے دھلنا، اس میں ان کو نماز کا وقت ہی نہیں ملتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو قوم اپنا مرتبہ نہ سمجھے گی وہ کچل دی جائے گی، وہ تباہ اور برباد کر دی جائے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، تمہارا مرتبہ کتنا اہم ہے۔ مسلمانوں، تھوڑا سا بات آئیے تو عرض کروں، پھر اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا اہم ہے تمہارا مرتبہ، کتنا عظیم ہے تمہارا مرتبہ۔ ایک IAS آفیسر کی حیثیت کیا ہے مومن کے سامنے، کسی وزیر اعظم کی حیثیت کیا ہے مومن کے سامنے۔ مومن وہ ہے، مومن کی ڈگری وہ ہے، ساری ڈگریاں دنیا میں رہے گی لیکن مومن کی ڈگری قبر تک جائے گی، اور یہ تمہیں جنت کی طرف لے کر کے جائے گی۔ ایمان کی ڈگری کوئی کم چیز نہیں، اللہ نے تمہیں ایمان دیا، تم مومن ہو، بن مانگے تمہیں محمد الرسول اللہ کا دامن ملا ہے۔ ارے جس کے امتی ہونے کی تمنا حضرت موسیٰ نے کی ہے، جس کے امتی ہونے کی تمنا حضرت عیسیٰ نے کی ہے، تجھے بغیر مانگے اللہ نے اس محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اگر اسی ایک نعمت پر سجدہ شکر کریں تو بھی ہم زندگی ختم ہو جائے گی لیکن شکر ادا نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، لیکن کس قدر حیرت کی بات، وہ رسول کا دامن مانگ رہے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور بین مانگے اللہ نے تمہیں دامن دیا، تو ہم نے گانوں کے عوض اس کو چھوڑ دیا۔ ابھی آپ مولا حسین کا ذکر سن رہے ہوں گے، جہاں تک میرا گمان ہے، کیونکہ ایام وہی چل رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں، یزید سے تمہیں نفرت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ہے نا؟ لیکن اگر برا نہیں مانے میں یہ بات اگر کہوں تو اس کو شاید آپ برداشت کریں گے، اور اگر حقیقت ہوئی تو اس کو قبول بھی کریں گے، اور اگر دل کو لگے تو اس پہ عمل بھی کریں گے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں یزید آج کے مسلمانوں سے پیچھے ہو گیا، اور آج کے مسلمان کچھ گناہوں میں یزید سے آگے ہو گئے۔ ہاں، حسینی کہلا کر 2 قدم مجھے آگے نظر آ رہے ہیں آج کے مسلمان کہلانے والے، حسینی کہلانے والے۔ خاندان اہل بیت زندہ باد، صرف یہ نعرہ لگا کر تھوڑی چھوٹو، ہاں، زندہ باد کہنے کے لیے کردار بھی پیش کرنا ہوگا۔ یزید کا کردار یہ ہے کہ وہ بندروں کا ناچ دیکھتا ہے، یہ یزید کا کردار ہے۔ امام حسین کو جو اس سے نفرت ہے، اس لیے نفرت ہے کہ وہ بندروں کا ناچ دیکھتا ہے۔ آپ بندر کا ناچ نہیں دیکھتے، آپ ننگا ہیرو اور ننگی ہیروئن کو ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ کوئی عقل والا مجھے بتا دے کہ بندر کا ناچ برا ہے یا ننگی ہیرو ہیروئن کا ناچ برا ہے؟ کیا تم یزید سے اس معاملے میں 2 قدم آگے نہیں؟ پھر جب یزید سے امام حسین کو نفرت تو تم سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر قیامت کے دن مولا حسین نے تمہارا دامن پکڑا، او غدار، خاندان اہل بیت زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا اور اپنے کردار سے یزید زندہ باد کہتا تھا، تو منافق ہے، تو غدار ہے، تو اس وقت تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ یہ دنیا 2 دن کی ہے، نفس کی غلامی میں کب تک زندگی گزارو گے؟ نفس کے غلام کب تک بنو گے؟ شیطان کے ہاتھ میں کھلونا کب تک بنو گے؟ کب تک شیطان کے ہاتھ میں کٹ پتلی کی طرح ناچو گے؟ ارے مومن تو وہ ہے، سچا حسینی تو وہ ہے جو یہ کہ مولا حسین تیرے خون کی قسم، جو تجھے ناپسند ہے وہ مجھے ناپسند ہے، جس دین کے لیے تو نے سب کچھ لٹایا ہے، اب میں اس دین پہ عمل کروں گا اور تیری مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزاروں گا۔ پھر دیکھو مولا حسین کی شفقتیں تم پر کیسے برسے گی۔ لیکن حیرت تو اس بات پر ہے، اپنے وہ جو 22,000 تھے نا، ان کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے بلایا تھا اسے
हुसैनी बनकर और बाद में यजीदी हो गए थे। मैं तुम्हें यजीदी तो नहीं कहता हूं, कतन नहीं कहूंगा, और जो कहेगा मैं उससे झगड़ा भी करूंगा, लेकिन मैं ये एहसास तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, जिस वक्त तो तुम हेडफोन लगाकर कान में वो शिरकिया कलमात गाने के सुनते होंगे तो मौला हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी, सिर्फ इतना एहसास कर लो। इसलिए कि हुसैन ने तकरीरें नहीं की है, तकरीर करके दीन नहीं फैलाया मौला हुसैन ने। मौला हुसैन ने इस दीन की खातिर अपना जो कलेजा है, कलेजा, औलाद किसे कितनी प्यारी होती है, औलाद से इंसान को कितनी मोहब्बत होती है। अगर किसी का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो एक इंसान कहता है डॉक्टर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई ले ले, मेरा बच्चा बचा ले, जितना कमाया है सब कुर्बान कर दूंगा, मेरा बच्चा बचा ले। लेकिन हुसैन बच्चा बचाने की बात नहीं करते। हम शबीह पैगंबर 18 साल का कड़ियल जवान बेटा, बेटे को कहते बेटा करबला में नाना का दीन तेरा इंतजार कर रहा है, जा अपनी जिंदगी कुर्बान करके नाना का दीन बचा ले। उन्होंने दीन बचाने के लिए 18 साल का जवान, जवान बेटा किसे कहते हैं, जवान बेटा किसे कहते हैं, शायद मेरे जवानों को नहीं पता होगा मुकम्मल तौर पर, लेकिन यहाँ एक बात कहूंगा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ को ले जाने लगे तो जिद कर रहे थे, बाबा आप हमारे भाई को हमारे साथ खेलने क्यों नहीं देते। वो सौतेले भाई थे, उनका प्लान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे, तो कहा कि आप क्यों नहीं भेजते इसे हमारे साथ। तो हजरत यूसुफ ने भी कहा अब्बा ये कैसी मोहब्बत है आपके दिल में मुझसे कि भाई मुझे खेलने के लिए ले जाना चाहते हैं, हर बच्चा चाहता है खेले, आप मुझे अपने करीब पकड़ पकड़ के बिठाते हैं, मुझे तो जाने दीजिए ना खेलने के लिए। आपसे ये कहते हैं कि ले जाएंगे तो आप रोते हैं, पकड़ पकड़ के खींचते हैं। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था बेटा आज तुझे एहसास नहीं है, आज तुझे एहसास नहीं है यूसुफ, अगर तेरी तरह कोई खूबसूरत तेरा बेटा होगा, तेरी तरह खूबसूरत कोई तेरा बेटा होगा और उसके सौतेले भाई उसको कुएं में फेंकने के लिए ले जाते होंगे, तब तुझे एहसास होगा कि बेटे की अहमियत क्या होगी। मुसलमानों इतनी आसानी के साथ तुम दीन से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि अब तो हालात ये हैं कि लोग मज़ारात पे भी आते हैं तो अदब का दामन नहीं थामते। इल्ला माशाल्लाह बहुत से नौजवान, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन अब मज़ारात पे बैठकर कोई ताश के पत्ते खेल रहा है, मज़ारात पे बैठ करके अब जुए के मामलात हो रहे हैं, मज़ारात पे बैठ करके लोग गाने सुन रहे हैं, मज़ारात पे आने के बाद औरतों को धक्के दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं वो जो कब्र में सो रहा है वो बेखबर सो रहा है? नहीं, वहां उस वक्त जब तुम पाप करते हो तो तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन जब वली की कहर की नजर उठती है, इसलिए कि इंसान वली जब बनता है तो उसको दो सिफत अल्लाह अपनी देता है, अपनी अता से जितना चाहता है। अल्लाह अपनी सिफत के बराबर नहीं देता, लेकिन दो सिफत अल्लाह अपनी देता है, दो सिफत रसूलुल्लाह की देता है, दो सिफत अबू बकर सिद्दीक की देता है, दो सिफत उमर इब्ने खत्ताब की देता है, दो सिफत उस्मान गनी की देता है, दो सिफत मौला अली की देता है। ये 10 सिफत जब इंसान पाता है जब वो अल्लाह का वली बनता है। ये कोई मामूली डिग्री नहीं है विलायत की। तो जो अल्लाह अपनी सिफत देता है उसमें से एक सिफत रहीमी है और एक सिफत क़हारी है, यानी वो रहम करना जानता है तो फिर वो कहर की नजर उठाना भी जानता है। और जब वली की कहर की नजर उठती है तो फिर बड़े बड़े मालदारों के हाथ में भीख का कटोरा भी देखा जाता है। इसलिए कि आया करो तो अदब से, वरना वो कब्र में सोने वाला जब प्यार की नजर उठाकर किसी गुलाम को वली बना सकता है और किसी गुलाम को बादशाह बना सकता है, तो फिर वो वली जो है फिर किसी बादशाह को फकीर और भिखारी भी बना सकता है। इसलिए मस्ती मजाक के लिए न आया कर, ये मेला नहीं है, ये जतरा नहीं है कि तुम जो आए मन में करो, ये बुतों के मेले की तरह नहीं है, ये वो महफिलें हैं जहां फरिश्ते भी अदब से आते हैं।
वलियों की शान तुमने क्या समझा है? इसलिए अदब का ख्याल किया करो, और नहीं अदब कर सकते तो कम से कम बेअदबी भी मत किया करो, वरना तबाही मुकद्दर बन जाती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज कर रहा था कितना कीमती है मोमिन, कितना अहम है कि इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि आम मोमिन, यही अर्ज करता कि आम फरिश्ते से अफजल है। कितना अहम है मोमिन, तेरी शान कितनी अजीम है कि फरिश्ते जो आम है उनमें से अक्सर फरिश्तों को अल्लाह के कुरान की तिलावत करने की इजाजत नहीं है। तो फरिश्ते अल्लाह से अर्ज करते हैं, मौला तू तो हमें कुरान की तिलावत की इजाजत नहीं देता, कुरान बड़ी अजीम चीज है और हर फरिश्ता उसकी तिलावत नहीं कर सकता। तो फरिश्ते अर्ज करते, अल्लाह जब तू तिलावत कुरान की हमें इजाजत नहीं देता तो हम तिलावत कुरान की लज्जत हासिल करना चाहते हैं, कैसे हासिल करें? तो अल्लाह हुक्म देता है, फरिश्तों जमीन पे जाओ और मेरे जो बंदे कुरान की तिलावत कर रहे हैं उनके मुंह पर अपना मुंह रखो और तुम तिलावत की लज्जत हासिल करो। मुसलमान फरिश्ते तेरी चौखट पे आते हैं कुरान की लज्जत हासिल करने के लिए। जब तू कुरान की तेरा कितना अहम है, तू कितना कीमती है तू, लेकिन तूने अपने आप को समझा ही नहीं, इसलिए तू जुए के अड्डे पर परेशान है। हालांकि सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो जुए के आलात को, जुआ खेलना बहुत बुरी चीज है, इतनी बुरी उसकी मजम्मत कुरान में है, लेकिन जुआ कोई खेले नहीं बल्कि जुए के आलात को सिर्फ देखने के लिए अपने हाथ में ले तो वो ऐसा है जैसे उसने अपने हाथों को सूअर के खून में रंग लिया है। और जब वो क़यामत के दिन उठेगा तो इस हाल में उठेगा कि उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा, और कितनी बड़ी उसकी महरूमी होगी उसको यूं समझें। क़यामत के दिन आका फरमाते मैं अपनी उम्मत से मुसाफा करूंगा। अब गौर फरमाएं, इस मजमे के अंदर ये उलमा, मुकद्दस उलमा और सादात की महफिल है, ये मुसाफा करने बैठे और आप में से किसी का हाथ कीचड़ में सिर्फ भर गया हो तो कीचड़ बड़े हुए हाथ से क्या आप इन उलमा और सादात से मुसाफा करने की जुर्रत करेंगे, हिम्मत करेंगे? और अगर कोई बहुत बेबाक भी हो और वो आ भी गया तो यहाँ जो खिदमत पर लोग मुतय्यन हैं इन बुजुर्गों से उसको मुसाफा करने देंगे? नहीं, हरगिज नहीं। नादान, जब इनसे कीचड़ वाले हाथ से तू मुसाफा करने की जुर्रत नहीं कर सकता तो जुए के आलात को हाथ में लेने की वजह से जब क़यामत के दिन तेरे हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे तो क्या तू अल्लाह के हबीब से मुसाफा कर सकेगा, मुसाफे की जुर्रत कर सकेगा? कितनी बड़ी महरूमी होगी तेरी। और फिर वहां पछताने से कोई काम नहीं चलेगा। पछताना है तो यहाँ पछता ले, शर्माना है तो यहाँ शर्मा ले, नादिम होना है तो यहाँ नादिम हो जा। वहां की शर्मिंदगी कोई फायदा नहीं देगी, वहां का पछताना कोई फायदा नहीं देगा। मुसलमानों होश में आओ, शैतान का आलय कार न बनो, शैतान का आलय कार न बनो। अल्लाह अकबर। अब जुआ सिर्फ वही नहीं है कि आप ताश के पत्ते खेलें, वो तो बहुत पुराना हो गया। जुआ सिर्फ वही नहीं है कि आप कैरम और वो दूसरी सारी चीजें। अब तो लोग नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं जुए के। मोबाइल में 3 पत्ती वाला खुदा जाने वो क्या बला निकाल रखी है। पहले लोग जो है वो इकट्ठा जमा होते थे तो गुनाह करते थे, अब जो जहां है वहां बैठे बैठे गुनाह कर रहा है। मुसलमान तो जुआ खेलने के लिए तो नहीं, तू अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर। अल्लाह ने तुझे कौमों की क़यादत के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने तुझे कौमों की इमामत के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने तुझे हुसूल इल्म के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने तुझे तरक्की के लिए। अगर तेरा पेट भरा है और तेरी तिजोरियां भरी है तो तू सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुआ, मेहनत कर दूसरों के लिए और दूसरों का बोझ उठाने की कोशिश कर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐश परस्ती में मुब्तला करके लोगों को जो है वो माज़अल्लाह जिल्लत के घाट उतारने का मंसूबा बनाया जाता है और हमारी फिक्र को भी तब्दील किया जा रहा है। इसलिए बदलना होगा अपने आप को, तब्दील करना होगा अपने आप को। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारे बुजुर्गों का तरीका बहुत पुराना ये नजरिया चला रहा है कि जब भी मुसलमानों पर मुसीबत आई, अगर वली जमीन के ऊपर है तो भी मुसलमान वली की चौखट पर जाते थे और जमीन के अंदर है तो भी जाते थे।
आप नहीं देखते बड़े बड़े शहीनशाह, बड़े बड़े बादशाह औलिया अल्लाह की चौखट पर। अच्छा आप कहेंगे चलो कोई बादशाह अलवली की चौखट पे गया तो उसको इल्म होगा नहीं होगा, जाहिल होगा, पता नहीं, वो चला गया तो वो कोई दलील है? नहीं। हमने कहा ठीक है, बादशाह का जाना कोई दलील नहीं है, लेकिन एक दलील जरूर बताता है बादशाह का जाना कि उस दौर में कोई मज़ारात से रोकने वाला नहीं था, इसीलिए तो बादशाह भी जाते थे और फकीर भी जाते थे। लेकिन जहां तक के बात दलील की है तो मैं आपको बताऊं, वो मेरे भाई जो किसी की जो है वो सड़ी गली तकरीर सुनकर अगर मज़ारात औलिया से बदजन हो गए कि मस्जिदों के होते हुए वली की चौखट पे जाने की जरूरत क्या, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला सफर हमारे और आपके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्के से मदीने मुनव्वरा तक का किया। वो पहला सफर न तिजारत के लिए था, न दीन की तबलीग के लिए था, न कारोबार के लिए था, न किसी और चीज के लिए था। हुजूर ने अपनी जिंदगी का पहला सफर अपनी अम्मी के साथ 6 साल की उम्र में किया, मक्के से लेकर मदीने मुनव्वरा तक। उस वक्त मदीना मुनव्वरा नहीं बना था, वो यसरिब कहलाता था। लेकिन उनकी अम्मी के साथ हुजूर 6 साल की उम्र में सफर करते हैं। क्यों करते हैं? एक मजार पर हाजिरी के लिए। हुजूर की जिंदगी का पहला सफर एक वली के मजार पर हाजिरी के लिए था। वो वली कौन था? वो खुशनसीब वली, अल्लाह अकबर, वो मेरे आका के अब्बू जान हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनके मजार पर हुजूर तशरीफ ले गए थे। और उनकी अम्मी ये बोल कर ले गई थी, मेरे बेटे जब तू मेरे शिकम में था तब तेरे वालिद का विसाल हो गया, तूने अपने बाप को नहीं देखा, बेटा चल मैं तुझे तेरे बाप की मजार दिखा करके लाती हूँ। आप गौर फरमाए मुसलमानों कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का सबसे पहला सफर आज के दौर के हिसाब से 500 किलोमीटर का सफर अपनी अम्मी के साथ जो किया है, एक वली के मजार पर हाजिरी देने के लिए किया है। अब अगर हम वली के मजार पे जाएं, इतनी दूर अजमेर शरीफ, इतनी दूर निजामुद्दीन औलिया, इतनी दूर बख्तियार काकी, इतनी दूर मखदूम अशरफ, इतनी दूर शाह वजीउद्दीन, हम कहते हैं हमारे रसूल 500 किलोमीटर। आज के हिसाब अगर लगाएं तो 6 साल की मासूम सी नन्ही सी उम्र में अपने वालिद के मजार पर जा रहे हैं। गोया के रसूल बता रहे हैं मेरी जिंदगी का पहला सफर मजार पर हाजिरी के लिए है। उसके बाद आप देखें सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है, अल्लाह अकबर, जब आए हैं हिंदुस्तान में तो दाता अली हिजवरी के मजार पर 40 दिन तक चिल्ला किया, हाजिरी दिया, तशरीफ लाए। अब सबकी बात तो अपनी जगह है। आज मौला हुसैन जिनके डंके तुम बजा रहे हो, जो हमारे लिए दीन है, जो हमारे लिए दलील है, जो हमारे लिए मेयार है, जो हमारे लिए ईमान है, जो नातिक़े कुरान है, हुसैन नातिक़े कुरान है, हुसैन अल्लाह अकबर, हमारे ईमान की जान है हुसैन। जब करबला के लिए निकलने वाले थे तो मौला हुसैन के बारे में कोई मुझे एक रिवायत बताए ऐसी कि मस्जिद नबवी में हुसैन ने हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह इतनी मुसीबतों में जा रहा हूँ, मेरी जान बचा ले, मेरे बच्चों की जान बचा ले, ये मुसीबत टाल दे। नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। मौला हुसैन करबला के लिए इरादा करने से पहले अम्मी जान के मजार पे जाते हैं, नाना जान के मजार पे जाते हैं, भाई जान के मजार पे जाते हैं। कभी माँ से कहते हैं, माँ जब अली अकबर का लाशा गिरे उस वक्त मेरे हाथ से सब्र का दामन न छूटे, मेरे लिए दुआ कर दे। नाना से कहते हैं, नाना जब अल्लाह अकबर मेरा मासूम बच्चा कुर्बान हो उस वक्त मैं यजीद के हाथ में बिकूं नहीं बल्कि अपने मौकिफ पर डटा रहूं, इसके लिए दुआ फरमा दे नादान। इतनी बड़ी मुसीबत के लिए हुसैन चल रहे हैं तो मज़ारात पर हाजिरी दे रहे हैं। अब इससे बढ़कर मज़ारात पर हाजिरी का सबूत किसे चाहिए और क्या चाहिए? ये तो सुन्नत हुसैनी है, सुन्नत नबवी है, सुन्नत औलिया है। मुसलमानों याद रखो, तुम्हारे दीन को खोखला करने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारे अकीदे को खोखला करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए उसी अकीदे पे कायम रहो जो अकीदा 1450 साल से तुम्हारे पास आया है, और जो 1857 के बाद का अकीदा है खुदा के लिए, उससे बचो, वरना तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ेगा, तुम्हारा दीन खतरे में पड़ेगा, और ईमान दुनिया से सलामत ले जाओगे तो यहां भी कामयाब वहां भी कामयाब।
لیکن ایمان کی سلامتی کے لیے آپ سب سنی الحمدللہ ایمان والے ہیں، اسی لیے تو ولی کی چوکھٹ پر آئے ہیں۔ عقیدہ تو درست ہے لیکن عمل کے معاملے میں بھی پرفیکٹ بنے۔ بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، اس لیے کہ میں خود لیٹ پہنچا ہوں تو بہت لمبی گفتگو کا موقع بھی نہیں ہے، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے دو طرح کا امتحان لیتا ہے، ایک تو چھین کر، ایک تو دے کر۔ اگر کچھ چھین لے تو بھی اس کی رضا میں راضی رہو مولا حسین کی طرح، اور اگر دے کر امتحان لے تو بھی کامیاب ہو جاؤ حضرت عثمان غنی کی طرح، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی طرح، حضرت ابو بکر صدیق کی طرح۔ دیکھو آج اللہ جو ہم سے امتحان لے رہا ہے تو اس نے ہمارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ آج غربت کم سے کم رہ گئی ہے، زیادہ تر مسلمان اس وقت مالدار ہیں۔ اکثر اگر آپ پوری دنیا کے اندر جائزہ لیں گے تو آپ کو پوری دنیا کے اندر 70% لوگوں کے پاس تو مال ملے گا۔ ایک طبقہ ہے جو روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہا ہے، میں ان کا ذکر نہیں کرتا۔ 40% ہے غربت، لیکن 30% غربت ہے، لیکن 70%، 60% لوگوں کے پاس مال ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو ایک یوں دوں، دیکھیے پہلے کا مسلمان ایک ٹائم کھانا کھاتا تھا، اب مسلمان 3 ٹائم کھاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پیزا اور جو آج کی ڈش ہے، اس کا تصور 100 سال پہلے نہیں تھا۔ آج کتنی عظیم عظیم نعمتیں کھانے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے جو مسلمان 5 روپے میٹر کا کپڑا پہنتا تھا تو لوگ اس کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن آج کا مسلمان ہزاروں روپے کا کپڑا پہن رہا ہے۔ اگر جینس خریدنے جاتا ہے تو 2-3 ہزار روپے سے کم کی تو نہیں ملتی، یہ حال ہے۔ کرتا پاجامے کا کپڑا بھی خریدیں تو بھی وہ مہنگائی ہے۔ اسی طریقے سے ہر دوسرے آدمی کے پاس جو ہے وہ قیمتی موبائل ہے۔ میں اس پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا ہوں، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے نعمت کے دروازے ہم پہ کھول دیے۔ کل تک کے لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے تھے، چھت جو ہے وہ گھاس پھوس کی ہوتی تھی۔ اب بستی میں جائیں بڑی بڑی بلڈنگیں، غریب آدمی بھی اب فلیٹ میں رہتا ہے، چھوٹا ہی صحیح لیکن ہے تو پکا مکان۔ پہلے لوگوں کے گھر میں ہر گھر میں چراغ بھی نہیں جلتا تھا، اب اگر پاور بھی بند ہو جائے تو گھر میں اندھیرا نہیں رہتا۔ 80% گھروں میں انورٹر کی سہولت موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، لیکن اگر آپ تجزیہ کریں ایمان کے بارے میں، عمل کے بارے میں، تقوی کے بارے میں، کل کا مسلمان ایک ٹائم کھاتا تھا لیکن 5 وقت کی نماز ضرور پڑھتا تھا، وہ تہجد بھی پڑھتا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا تھا۔ ہم 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھا رہے، ایک سے ایک نعمت کھا رہے، لیکن ہمیں سوائے جمعہ کے اور نماز کی فرصت نہیں ہے۔ حال یہ ہے جمعہ میں بھی اس وقت پہنچتے ہیں جب امام منبر پہ بیٹھ چکا ہوتا ہے، آستینیں اطمینان سے چڑھائیں گے اور باتیں دوستوں سے کرتے کرتے وضو کریں گے، اتنے ٹائم میں اسی بات چیت کے درمیان خطبہ ہوگا، اور جب امام تحریمہ باندھ کر قرات کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوگا تو ہم دوڑ کر کے اس حالت میں آستینیں سیدھی کر رہے ہوں گے، کھینچ رہے ہوں گے، پانی گر رہا ہوگا اور ہم مسجد کے اندر کہیں دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ ہماری حالت ہے، اور 2 رکعت پڑھی اور مسجد سے ایسا بھاگے جیسے کوئی ہم پہ ڈنڈے برسا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے نعمت کے دروازے کھول کے ہمیں آزمایا ہے۔ کل لوگ ٹاٹ پر سوتے تھے، زیادہ سے زیادہ گدڑیاں بچھا کے سوتے تھے، اب لوگوں کے گھروں میں پلنگ ہے، نرم گدے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ سو، اس لیے کہ میں قطعاً جو ہے وہ آپ کو پرانے خیالات کی طرف